Do you want to learn Angular JS in quick time? This video might be just what you're looking for. Okay, so we are having this particular webinar. There is a purpose of this webinar, and we are going to have it because in order to fulfill the gap between the textbook knowledge and what is actually required for the organization, what the industry is in the demand. So through this webinar, we will be covering the what is AngularJS, the general and core features of the AngularJS, the architecture of AngularJS, the MVC architecture, and we will be creating a small app and a actual big app, a demo for that, which is totally be on the AngularJS. What we will not be covering is basically the HTML CSS part. We are not going to cover any designing thing. So I'm going to start with this application of AngularJS, the slides. So let's start with the first thing. What is AngularJS? You already have heard of the JavaScript thing, the jQuery and these kind of steps. Why we use the JavaScript and other technologies? It helps us to create the interactive application. You have a HTML page, you have a web page, but you need to add some functionalities like something to happen on a button on a click of a button. So you introduce the JavaScript. And what AngularJS is, AngularJS provides very rich functionality on all of these. So it's a way far better than the basic native JavaScript. So what is AngularJS? AngularJS, it is a very robust JavaScript framework which is used in single page application, SPA project. So what is single page application? So basically there are applications which run on, like if you have a HTML website that has 4 or 5 pages, so you will create 4 or 5 HTML pages. And what AngularJS does, it creates a single HTML application and it's rendered through the JavaScript coding all the remaining HTML pages. So basically अगर आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें मल्टीपल पेजेस है, 4-5 पेजेस हैं, तो आपको 4-5 HTML बना करके उसे नेविगेशन के थ्रू, एंकर टैग के थ्रू आपको रेंडर करवाना होता है। AngularJS में ये पावर है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। आपकी एक HTML फाइल होती है, उसी पेज पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर करते हैं, और ये AngularJS का खुद का पावर है। What are the other features of AngularJS? What's AngularJS mean? It's open source. So basically, what open source means is it's open source technology. So what open source means is like you can use it directly without any restrictions. You can manipulate its code. You can like build any kind of application. You can go through the AngularJS actual code and you can modify according to yourself, your need and your requirements. It's free of cost. So basically you don't need to pay anything. You just download it from a library. You can download the library in your local and you just start developing the AngularJS applications. It has been used by thousands of developers. So it's pretty fast and rich content provider technology. So that's why it is really globally used a lot. Coming to the next slide. It is licensed under Apache license version 2. What does it mean? It means that there is no patent involved. You are free to use. Whatever you will do with the AngularJS, there will be no claim by any other company or software. So let's get an idea of what's the brief history of the AngularJS. So AngularJS was created as a side project in Google developers. There are two Google developers, Misko and Adam, in 2009. They were creating a side project for the Google, and the name was the Get Angular. These two developers was creating a Get Angular project which will going to be allow web designers to interact with the both front end and back end. So they were creating some technology, some concept through which developer can create the front end and the back end both technologies. So Misko was working with Google and he has written around 17,000 lines of code and he took 6 months to generate this Get Angular thing. Apart from that, what Brad has done, he has written the entire application Get Angular in just 2 weeks. So there has been a conflict between Misko and their manager. You need to like write a code. You have taken 6 months and something. So what he does, they did a bet like we will create the technology in less amount of time. So although he lost the bet and completed the work in 3 weeks, but he was able to cut down the 17,000 lines of code to 15,100 lines just because of Get Angular. So the Brad
took interest in the project and AngularJS developed. So basically Misko didn't involve in much further into this, but Brad had written this code. So he started with the development, and this is how the AngularJS actually started come into the picture. And the Google was the company who was totally handling this AngularJS tech. So that's what I explained. Adam stopped working with AngularJS and Misko continued with Brad. And Get Angular project reshape in the name of AngularJS further. They built a team to create and maintain it with Google. Currently it is maintained by Google and its latest version is 1.7.0, which is in the market. And we will be creating a small application with this particular version only. So let's get into some general features of AngularJS. So it is efficient framework that can create rich internet application. Rich internet application means that's again the same thing. You can create a lot of interaction elements to the end users, for the end users, and it's really fast. So that's what includes in the rich internet application. AngularJS provide developers an option to write client-side application using JavaScript in a clean model view controller. So there might be a student that who was already aware of what is MVC actually. It's model view controller. All the latest technologies, latest programming languages uses this technology, the MVC architecture. So AngularJS also include this particular design framework, MVC. We will get into the detail in just some time. Application written in AngularJS are cross-browser compliant. So basically what it does mean is if you create an application through AngularJS, so it will run all the browsers. So it will run in the Chrome, Firefox, Safari, Opera. So it will run in all browsers without any issue. Just to make sure if the particular user have disabled the JavaScript, that it won't run properly. Apart from that, it's a cross-browser compliant, so it will work. So as I just explained, this AngularJS followed the MVC architecture. So what MVC architecture is exactly? It's model view controller. The framework is built on the popular concept of MVC, which is a design pattern used in all modern day web applications that I explained already. All the latest technologies, the languages, it follow the MVC architecture. If you are a backend developer or you know about the backend technologies, then you might have heard of this term MVC. This pattern is based on splitting the business logic layer, data layer, and presentation layer into separate sections. So what it does, it is basically all your business logic is in a separate place, all your views in a separate place, and all your modeling is in a separate place. So what exactly it does, let's get into the detail. So here it is. We have controller view model, basically model view controller. So what controller means in the architecture of MVC? The controller represents the layer that has the business logic. So whatever the logic you written, let's say you are going to create something application that is going to fetch data from third-party APIs. So that's a logic. You will write all these logics in the controller thing. You are defining variables, you are creating any big, any small thing that will go into the controller. Further, it says user event trigger the function which are stored inside your controller. So as I said, you click a button. So this event and what you are going to perform on this event will go into the controller. The user events are part of the controller. That's the same thing. Whatever events user perform on the web page UI, it will trigger the controller functions, controller variables, or any logic written in the controller file or controller objects. The next thing is view. Whatever you see on the website, it's a view. So this has nothing complex definition. View are used to represent the presentation layer which is provided to the end user. Whatever you see, no matter it's running behind AngularJS or whatever, the view you see, the UI you see on the website, that's the view. Let's go into what's the model. So model are used to represent your data. The data is your model, can be simple as just primitive declaration. All the variables you declare in your controller or all the data you are going to provide to the UI is reside inside the model. So थोड़ा सा मैं हिंदी में भी ब्रीफ कर देता हूँ पार्टिसिपेंट्स के लिए कि MVC एक आर्किटेक्चर है जिसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है. हम जो भी एक UI एक वेबसाइट में देखते हैं वो व्यू है. अब व्यू से अगर कोई इंटरेक्शन होता है, हम अगर कोई बटन क्लिक करते हैं, हम कोई सिलेक्शन बॉक्स टिक करते हैं, हम कोई चेक बॉक्स क्लिक करते हैं, इस इवेंट के सारे लॉजिक कंट्रोलर में जाते हैं. और कंट्रोलर में डिफाइन कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऐसा डेटा सेट जो हम व्यू पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा मॉडल होता है. तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो एंगुलर के बेसिक फीचर्स, कैसा आर्किटेक्चर है वो हमने डिस्कस किया. अब हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं कि आखिर हम एंगुलर से
क्या हमें डिफरेंस है, क्या हम जावास्क्रिप्ट से क्या नहीं कर सकते जो हम एंगुलर से कर सकते हैं, हमें क्या पावरफुल फीचर्स मिलेंगे। जनरल फीचर ऑफ एंगुलर जेएस ऑटोमेटिकली हैंडल जावास्क्रिप्ट कोड सुटेबल फॉर ईच ब्राउजर। जैसा भी मैंने कहा कि ये इसके साथ कंपेटेबिलिटी इश्यू नहीं है, तो अगर आप एंगुलर जेएस में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ये ऑल सारे ब्राउजर में चलेगा, क्रोम में, सफारी में, मोजिला में, ओपेरा में, कहीं भी चलेगा। It is an open source, completely free framework which is used by a wide range of developers across the globe. तो ये ओपन सोर्स है, आप इसे लाइब्रेरी की तरह यूज कर सकते हैं, आप इसके कोड में कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं होगा, कंप्लीटली फ्री है। तो बस एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है अपने प्रोजेक्ट में और एंगुलर जेएस का पावर आपके प्रोजेक्ट में इनबिल्ड हो जाएगा एंड देन आप उसे यूज कर पाएंगे, which is used by wide range of developers. So a lot of application, बहुत सारे एप्लीकेशन जो एंगुलर जेएस पे बने हुए हैं, तो बहुत सारे डेवलपर्स मार्केट में जो एंगुलर जेएस यूज करते हैं। It is used to build large scale high performance and easy to maintain web application. Just because कि ये MVC आर्किटेक्चर फॉलो करता है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसके पास कंट्रोलर व्यू का पावर है, इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं एंगुलर जेएस पे वो काफी इजीली मेंटेन हो सकते हैं। अगर हम एंगुलर जेएस न यूज करके नेटिव जावास्क्रिप्ट यूज करें तो हमें काफी लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ सकता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज हैंडल करने में इश्यूज हो सकते हैं जो कि एंगुलर जेएस के साथ नहीं होते। इट इज यूज टू बिल्ड लार्ज एप्लीकेशन, हाई परफॉर्मेंस, बहुत फास्ट होता है इसलिए हाई परफॉर्मेंस है, रिच कंटेंट प्रोवाइडर है, लार्ज स्केल, आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। बहुत सारे एंगुलर जेएस के लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स अवेलेबल है मार्केट में जिसको यूज करके आप बहुत ही अमेजिंग फीचर्स आप अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कोर फीचर ऑफ एंगुलर जेएस। अब हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें एंगुलर जेएस के एक्चुअल पावर, अभी जो हमने डिस्कस किया वो जेनरिक डेफिनेशंस हो गई कि हाँ एंगुलर जेएस से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, बट वो कैसे अचीव कर सकते हैं, तो कुछ डेफिनेशंस एंगुलर जेएस की हम यूज करने जा रहे हैं। Core feature of AngularJS data model binding. There is no need to write a special code to bind data to HTML control. अगर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और हमें लेट्स से किसी इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू है जिसे हमें गेट करना है, हमें उसे गेट करके लेट्स से किसी फॉर्म सबमिट पे भेजना है, तो वो जो लाइंस ऑफ कोड होंगे वो एंगुलर के कंपेयर में बहुत ज्यादा होंगे, एटलीस्ट 8 to 10 लाइंस का कोड होगा जिसमें हम डेटा गेट करके भेजेंगे। एंगुलर में वो सिंगल लाइनर कोड हो जाता है, क्योंकि यहाँ डेटा बाइंडिंग जो लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड टू राइट अ स्पेशल कोड टू बाइंड द डेटा, यू जस्ट नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इट विल बी ऑटो बाइंडेड विथ योर व्यू। यू चेंज अ वेरिएबल वैल्यू, इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट टू द व्यू, और वो अभी हम करके देखेंगे। This code can be done by AngularJS by just adding a few snippet of code. That's exactly what I said. The second feature is writing less code. When carrying out DOM manipulation, data object manipulation, a lot of JavaScript was required to be written to design any application. जो मैंने अभी कहा कि एक इनपुट बॉक्स से अगर वेरिएबल वैल्यू ले करके हमें फॉर्म में भी सबमिट कराना है तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ जाता है, बट डेटा बाइंडिंग की पावर की वजह से हम एंगुलर जेएस में से बहुत छोटी सी लाइनों में हम सारा अचीव कर सकते हैं। जो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये एक्चुअल में अचीव कैसे होता है। But with AngularJS, you will be amazed with the lesser amount of code you need to write for the DOM manipulation. That we will see in the practical example. The core feature of AngularJS, the third thing is unit testing ready. So what is unit testing? When you write a code, you test it by yourself first. You make sure that everything is working fine. Everything is working as expected. So that's what is unit testing. The designer at Google not only developed Angular but also developed a testing framework called Karma, which helps in designing unit test cases for AngularJS application. So अब अगर जैसे मैंने कहा था कि आप नोट डाउन करने के लिए कुछ पॉइंट रख सकते हो, तो ऑब्वियसली ये कर्मा पॉइंट आप रख सकते हो, क्योंकि कर्मा एक टेस्टिंग लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट की कई सारी लाइब्रेरीज के अगेंस्ट हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग लिख सकते हैं। तो जैसे AngularJS और फ्यूचर में अगर आप Node.js भी पढ़ते हो तो कर्मा ये एक टूल है जिसके थ्रू आप उसकी यूनिट टेस्टिंग लिख सकते हो। AngularJS expressions can be written inside double braces expressions. AngularJS will resolve the expression result exactly where the expression is written. AngularJS expressions are much like JavaScript expressions. So basically ये जो आप देख रहे हो रेड कलर में expressions, तो जहां भी ऐसी वेरिएबल UI में Angular को मिलते हैं वो ये चीज प्रिडिक्ट करता है कि यहाँ पे कोई डायनेमिक वैल्यू आने वाली है और उसके वेरिएबल आपके कंट्रोलर में डिफाइन रहते हैं, तो वहां पे जो भी वैल्यू उस समय होगी वो UI में ऑटो रिफ्लेक्ट होगी। AngularJS expression can contain literal, operator and variable. You can write anything here. For example, अगर आप एक UI में जाके केवल 5+5 कर देते हैं तो वहां पे वो आउटपुट कर देगा 10, इसकी वैल्यू, इसको वो मैनिपुलेट करके UI में ही ये इसे कैलकुलेट कर लेगा। लेट्स से अगर यही चीज हमें जावास्क्रिप्ट से यूज करनी होती तो दैट विल बी टाइम टेकिंग। हम दो इनपुट बॉक्स लेते हैं, उनकी गेट एलिमेंट बाय आईडी करके किसी तरह हम दो वैल्यूज निकालते हैं और उसे सम करते हैं। सेम और में जो ये लिखा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, दैट इज अगेन इजी। यू हैव टू लेट्स से यू हैव अ फॉर्म दैट इज having first name and last name, so without any click, without any button click, it will real time reflect the values of first name and last, and that I will show with some small amount of code.
AngularJS ng model directive. That is ng model in the brief. When you write any input type, let's say you have an input type text, you just provide a new attribute ng model and you declare it with a variable. What it does, ng model के अंदर जो भी हम variable name provide कराते हैं उसकी value controller file को real time पे मिलती रहती है. तो ng model let's say अगर आप एक input box बनाते हैं और वहां पे अगर आप कोई value provide कराते हैं वो as it is controller के variable में save हो जाती है. और अगर आप कंट्रोलर के वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हैं तो वो तुरंत के तुरंत HTML साइड में रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो इनपुट सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया हम कहीं भी उसको रियल टाइम में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. तो ये ng मॉडल वो एक टर्म, वो एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू ये डेटा बाइंडिंग चलती है, टू वे बाइंडिंग, जिसे टू वे बाइंडिंग बोलते हैं, जिसमें कि HTML के चेंज कंट्रोलर को और कंट्रोलर के चेंज HTML को रियल टाइम पे मिलते रहते हैं. With the ng model directive, you can bind the values of input field to a variable created in AngularJS. That's what I exactly said. AngularJS data binding in AngularJS is synchronization between model and view. So basically आपके view में जो variable है वो sync में रहता है model के variable से. तो model के variable का कोई भी change view में दिखाई देगा, view का कोई भी change model में reflect होगा. AngularJS application usually have a data model which is a collection of data available on the application. That's the variables and logics that we store in the controller that is available throughout the application. AngularJS controllers, you can imagine something like you have 5-page applications, so you can create 5 controllers. Each controller will take care of each pages. So if some pages have button clicks, so that particular clicks will go into that controller defined for that particular page. 5 पेज की आपकी वेबसाइट है तो हर पेज का आप अपना कंट्रोलर बना सकते हैं, so that कि एक पेज के इवेंट्स को एक ही कंट्रोलर हैंडल कर रहा हो. इससे जो अभी हमने डिस्कस किया इजी टू मेंटेन, वो हम अचीव कर सकते हैं. So AngularJS controllers control the data of AngularJS application. AngularJS controllers are regular JavaScript objects created by standard JavaScript object constructor. The ng controller directive defines the application controller. So basically ng controller वो attribute है जो हम किसी भी div, किसी भी label, table, किसी के साथ हम attach कर सकते हैं ng controller. तो वो particular div का start और end ये define कर देगा Angular को कि ये particular जो div section है वो कोई controller इसको manage कर रहा है. उसके अंदर के जो वेरिएबल्स होंगे वो उस कंट्रोलर में डिफाइन होने चाहिए. उस कंट्रोलर के वेरिएबल चेंज इतने पर्टिकुलर व्यू में ही रिफ्लेक्ट होंगे, थ्रू आउट एप्लीकेशन नहीं रिफ्लेक्ट होंगे. तो हम मल्टीपल कंट्रोलर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं. स्कोप्स, AngularJS में एक टर्म आता है स्कोप्स. द स्कोप इज द बाइंडिंग पार्ट बिटवीन द HTML एंड द जावास्क्रिप्ट. दैट्स द सर्विस प्रोवाइडेड बाय AngularJS. तो AngularJS के पास ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है स्कोप. हम स्कोप के थ्रू बताते हैं कि कौन सा वेरिएबल UI में रिफ्लेक्ट होगा. अगर हम कोई वेरिएबल विदाउट स्कोप डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल केवल कंट्रोलर में ही रह जाता है, वो व्यू को नहीं डिटेक्ट होता. अगर कोई वेरिएबल हम स्कोप के थ्रू डिफाइन करते हैं तो वो व्यू को पता रहता है कि स्कोप के वेरिएबल्स डायनेमिक हैं, वो व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो जो कंट्रोलर हम डिफाइन करते हैं व्यू में वो केवल स्कोप वेरिएबल को ही डिटेक्ट करते हैं, बाकी लोकल वेरिएबल्स को डिटेक्ट नहीं करते. वो सब मैं थोड़ा थोड़ा डेमो में आपको बताऊंगा. It is an object with the available properties and method. The scope is available for both the view and the controller. So exactly वही चीज, स्कोप के वेरिएबल्स व्यू एंड कंट्रोलर दोनों जगह अवेलेबल होते हैं और एक का चेंज दूसरे में रियल टाइम रिफ्लेक्ट होता है. AngularJS modules, and AngularJS modules define an application. आपका जो पूरा एप्लीकेशन होता है वो एक मॉड्यूल होता है. एक एप्लीकेशन के मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल सेक्शंस को हम कंट्रोलर से डिफाइन करते हैं. तो मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंट्रोलर हो सकते हैं. So what exactly it says, an AngularJS module defines an application. It defines the whole application. The module is a container for different part of an application. The module is a container for application controller. Controller always belong to a module. Exactly the same thing कि जो हमारा module है वो पूरा का पूरा application हो सकता है. Controllers हमारा कोई particular div हो सकता है, particular page हो सकता है. तो एक module के अंदर multiple controllers आ सकते हैं. So let's do some coding on AngularJS now. तो अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई, जो मॉडल, डेटा बाइंडिंग, व्यू, स्कोप वेरिएबल, रियल टाइम डेटा चेंजेस, तो अब थोड़ा सा उस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं. लेट मी सेट अप थिंग. ओके, सो हम एक एप्लीकेशन ऑन करते हैं. तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है जो सबलाइम में यूज कर रहा हूँ, एंड हमारी ये क्रोम की विंडो है.
अब हम वो सारी चीजें ट्राई करेंगे जैसा हमने अभी डिस्कस किया था. So let's create a simple index.html which will have all the UI thing, and one simple app.js which will have the code for the Angular. So I'm not going to create a lot of HTML here. So this is our page, and let's open it in the browser. So here is the page. We enable the console. Console is very important for the JavaScript developers especially. जो भी चीज हम अपने जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड करते हैं या लिखते हैं, कोड लॉजिक और सारा कुछ, वो सब कंसोल में ही दिखता है. ये नेटवर्क टैब, आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स इंक्लूड सम एंगुलर थिंग. ओके, सबसे पहले हम इसमें एंगुलर जेएस लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे. तो वो पब्लिकली कहीं भी अवेलेबल हो सकता है. हियर इट इज. हम स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं या इट्स फाइन, हम पूरा कोड कॉपी कर. ओके, तो ये एक एप्लीकेशन है बेसिक सा. हमने कुछ हमने इस समय बस इतना ही किया है कि एक HTML है जिसमें हम लोगों ने एंगुलर की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है. एंड हम फिर से क्रिएट कर लेंगे. नेक्स्ट, जैसा हमने कहा था कि एंगुलर में एक मॉड्यूल इंक्लूड करना होता है, तो वो हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले. मैं अभी एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है. सो बेसिकली जो चीजें हमने डिस्कस की, हमने एक ऐप क्रिएट किया, angular.module my app. ये हमारा मॉड्यूल होगा. जो अभी हमने कहा था, एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर्स हो सकते हैं और मॉड्यूल हमारा एक कंप्लीट एप्लीकेशन होता है. तो ये हमारा पर्टिकुलर जो राइट साइड में आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, इसका ये नाम हो गया माई ऐप. एंड उसके अंदर हमने एक कंट्रोलर डिफाइन किया, ऐप, दैट इज माई ऐप डॉट कंट्रोलर माई कंट्रोलर. अब हमें ये करना होगा कि हमें एक यूआई को बताना होगा कि हमारे पास एक माई कंट्रोलर है जो कि एंगुलर का कंट्रोलर है. तो वो हम जा करके फाइन, हम वापस आते हैं अपनी HTML में. हमने सबसे पहले अपना एक ऐप बनाया, तो हम यहाँ पे ng ऐप बता सकते हैं, दैट इज माई ऐप. और एक ये जो पर्टिकुलर डिव हम क्रिएट कर रहे हैं, इसे हम बता देते हैं कि ये हमारा एंगुलर कंट्रोलर है. तो हमने एंगुलर कंट्रोलर बता दिया, और जो हमारा कंट्रोलर नेम है माई कंट्रोलर, वो इसे यहाँ पे लाके पेस्ट कर. ओके, सो ये पर्टिकुलर जो डिव है, ये अब हमारी कंट्रोलर बन गई है. ऑब्वियसली अगर हमने यहाँ एंगुलर इंक्लूड किया तो हमें अपनी लोकल स्क्रिप्ट फाइल भी इंक्लूड करनी होगी जिसमें हम एंगुलर की डिटेल्स लिख रहे हैं. एंड दैट इज शासी app.js. हम चेक भी कर लेते हैं कि ये app.js लोड हो गई या नहीं. तो हम एक कंसोल लिख लेते हैं, app.js लोडेड. अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, app.js लोडेड का लॉग आ चुका है, जो कि हमारा ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर app.js जो है वो लोड हो चुकी है. अभी जो एरर है वो हम टेक केयर कर लेंगे. फाइन, अब कोई एरर नहीं है, app.js लोड हो चुकी है. ये पर्टिकुलर जो कंट्रोलर है, अब अगर हम यहाँ एंगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं 5+5 और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 प्रिंटेड है. ये अभी हमने स्लाइड्स में दिखाया था कि अगर हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो यहाँ पे इसने इसको कैलकुलेट करके वैल्यू प्रिंट कर दिया. अभी इसे हमें जावास्क्रिप्ट से लिखना होता तो हमें बहुत सारे मैनिपुलेशंस करने पड़ते, बहुत सारे कोड लिखना पड़ता, जिसके थ्रू ये HTML में रेंडर हो पाता. नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हमने जैसे कहा कि हमने यहाँ पे क्या कवर कर लिया, एक एप्लीकेशन का मॉड्यूल कवर कर लिया जो कि ये माई ऐप है. हमने एक मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर एक कंट्रोलर बनाया. नेक्स्ट थिंग जो मैंने कहा था वो एक स्कोप सर्विस थी जो हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे. इसे सर्विस इंजेक्शन कहते हैं, जो कि हमने स्कोप इंक्लूड किया. ये पर्टिकुलर कंट्रोलर जो है वो स्कोप को यूज कर रहा है. अब लेट्स से अगर हम स्कोप डॉट काउंट इक्वल टू 10 कर दें, लेट्स से 20 कर देते हैं,
और इस काउंट को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ वेरिएबल, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिव को पता है कि ये मैं माई कंट्रोलर के अंडर हूं, तो माई कंट्रोलर के स्कोप के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो काउंट अगर मैं अब रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे 20 आ गया जो हमने डिफाइन किया था। अलावा अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो लेट्स से हम इंक्लूड करते हैं लेट एन what else we can do, let's create an input box. Input type text, just refresh it, we have an input box. As I said, there is ng model in our slide, there is something was ng model, this one. So ng model I have explained, like you can create an input select and text area, you just need to define a variable here. So you define it as let's say name, and for that name you need to define a variable here, name, let's say it's W3 grads. So nothing will happen right now. We have the W3 grads defined here and it auto reflect because of this model. So name को अगर हम कमेंट कर दें, हम कुछ भी डिफाइन ना करें, तो यहाँ पे कोई वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लेकिन हम नेम को अगर यहाँ डिफाइन कर देते हैं तो हमारे कंट्रोलर की सिंकिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे रन टाइम पे इनपुट बॉक्स के साथ हो रही है। हम इसको एक रियल टाइम और इफेक्ट देखने के लिए हम एक लेबल यूज करते हैं, जहां पे हम यूज कर लेते हैं ये वेरिएबल नेम। हमने रिफ्रेश किया, अब देखिए जो नेम, ये रियल टाइम सिंकिंग है। हमने नेम एक वेरिएबल डिफाइन किया था जो हमने इस इनपुट मॉडल के साथ बाइंड कर दिया, उसको हमने एक लेबल में रिफ्लेक्ट करवाया। अब हम अगर इसे, मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, लेट्स से मैंने अपना नाम दिया, ये आप देख सकते हैं कितने रियल टाइम ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये चीज अगर हमें नेटिव जावास्क्रिप्ट से यूज करनी होती तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता। हमें किसी तरह इसको एक आईडी, इनपुट बॉक्स को एक आईडी देनी होती, फिर उस आईडी से हम वेरिएबल गेट करते और देन हम एक दूसरे लेवल में जाकर के वापस से उस वैल्यू को पुट करते, जो कि सारा कोड बिना किसी, केवल एक वेरिएबल डिक्लेरेशन से ही सारी चीजें कवर हो गई। अब हम एक छोटा सा सैंपल इसमें और ऐड करते हैं। लेट्स से हमने दो बॉक्स लिए हैं, इनपुट बॉक्स, जो कि आप यहाँ देख रहे हो इनपुट टाइप नंबर है, तो ये एक इंटीजर ले पाएंगे। मॉडल हमने दिया फर्स्ट एंड सेकंड, हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं मॉडल्स को। हमने एक वेरिएबल लिया फर्स्ट, सेकंड, हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 आ गया। हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन लिखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पे सम कराया है, जो वैल्यू फर्स्ट में एंटर होगी, जो वैल्यू सेकंड में एंटर होगी, उनका सम यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट में एंटर करते हैं 10, तो 10 प्लस 0 10, यहाँ हम एंटर करते हैं 23, 10 प्लस 23 इज 33, सो इट इज रियली फास्ट। और ये इतना रियल टाइम, अगर हमने 2 टाइप किया तब ये आया, और जो भी हम टाइप करते चले जाएंगे वो रियल टाइम कैलकुलेशन चलती चली जाएगी। सो दैट्स व्हाट द पावर ऑफ एंगुलर.js। हमने बहुत छोटे से लाइन ऑफ कोड लिख करके, हमने अभी तक एक्चुअल में कोई जावास्क्रिप्ट कुछ खास लिखी नहीं, हमने केवल वेरिएबल डिक्लेरेशन करके कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पे अचीव कर ली, जो कि नेटिव जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जो चीजें हमने अभी कवर की, उसमें इजी टू मेंटेन कोड देख लिया हमने मैं फिर से एक रिकॉल कर देता हूँ। ये मॉड्यूल है जो हम डिफाइन करते हैं, जो थ्रू आउट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का एक मॉड्यूल हो जाता है। हम एक कंट्रोलर डिफाइन करते हैं, हम ऐसे यहाँ पे मल्टीपल कंट्रोलर्स डिफाइन कर सकते हैं। इन सारे कंट्रोलर का नेम बदल करके हम अपनी यूआई में जहां चाहें, जिस डिव, जिस पेजेस, हम वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स से हम एक अनदर डिव बना करके हम उसको नया कंट्रोलर नेम दे सकते हैं और यहाँ पे एक नया कंट्रोलर डिफाइन कर सकते हैं। उसके अपने वेरिएबल होंगे, उसका अपना स्कोप होगा, उसके अपनी मेथड्स एंड फंक्शंस होंगे। एक छोटा सा मैं इसमें सम करके भी आपको एक बटन इवेंट भी दिखा देता हूँ। So let's say we create a button
that is type button clear all, and एंगुलर जो बटन क्लिक के लिए प्रोवाइड कराता है वो ng click एक डायरेक्टिव होती है, और यहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन कर देते हैं ng click वी कैन डू क्लियर ऑल। ये फंक्शन हम अपने ऐप में डिफाइन कर देंगे। सो लेट्स से वी डिफाइन इट एज अ फंक्शन, एंड अगेन अगर हमारे पास ऑप्शंस है कि हम इसको ऐसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी बट ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगेन जैसा मैंने एक वेरिएबल दिखा करके बताया था कि जब तक ये स्कोप में नहीं होगा ये वहां से ट्रिगर नहीं होगा। तो लेट्स से वी डू अलर्ट triggered. So if we refresh, we get a button, we click on this, but nothing is happening because ये scope में नहीं है। अगर हम इसे as a scope define कर देते हैं, so let's say we define it as a scope dot clear all is equal to a function, and अगर अब हम refresh करते हैं clear all I am triggered. So basically ये second वाले से आया है, वो मैं दिखा भी देता हूँ। I am triggered from scope, I am triggered from scope. So just because कि हमने scope ऐड नहीं किया था, इस वजह से ये local function रह गया और ये view का function हो गया। So what we can do here, we can reset everything apart from alert. So we can set it back to 0, 0, blank, and 0. So let's say we refresh it with 30 W3 grads, we have 10, we have 20, and we just clear all. So just because we have declared this, it's clear everything. We don't need to get like हम अपने इनपुट बॉक्स की आईडी ले उसे क्लियर करें, फिर हम लेबल की आईडी ले उसे क्लियर करें, we just redeclare everything. So this is fast. Okay, so let's get back to with the slides. ठीक है, स्लाइड से जाने से पहले हम लोग एक थोड़ा और एक्सपैंड एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन ये जो एप्लीकेशन है, जो मैंने जस्ट अभी छोटा सा एप्लीकेशन डेमो बनाया, गिटहब पे, गिटहब के आईडी में मैं लास्ट में एक यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, वहां से गिटहब से इस कोड को देख सकते हो, कुछ उसमें समझना हो, ये थ्रू आउट जो कोड मैंने अभी यहाँ लिखा है वो आप गिटहब से उठा लेना। तो मैं चैट विंडो में एट द एंड में पेस्ट कर दूंगा। सो उससे पहले एक हम लोग नया एप्लीकेशन बनाते हैं जो थोड़ा सा और एंगुलर की पावर को यूज करे। सो application, so we will create an index.html same as before. We will create org.js for the angular code, and मैं एक HTML पेस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि HTML पे हम एफर्ट नहीं देना चाहते। Paste. So this is an example of the whole website. The whole is an admin dashboard. So there is a page with webinar. We create a file with live stats. What we are going to do, we are going to create, we are going to call a third-party service which will provide some stats for the COVID-19. So what COVID-19, it will provide the recovery rate of each country's states. So we will be fetching and we will be showing how Angular in just a small amount of time how can create a whole application. So we create a live stats.html. Okay, and we have app.js. We can remove this live stats. We can open this live stats via Chrome. So there is nothing right now, no UI, nothing. We will be bringing some UI to it. We have a console. So let's start developing with this. So we will include again the HTML COVID-19
stats. I hope we will get a title here, COVID-19 stats. So this is the same page. And head, inside head. And just ignore these things because this is the whole bunch of application, already created application. So I'm just bringing the UI from there. So you don't need to get into what exactly I have just did. We just need to make sure that we have included the Angular library. So we will see we don't have this right now. I will include it. Okay, here it is. So we have this. Here it is. We have included the Angular that we did in the previous application and our app.js. That is blank right now. So we will like console here. COVID stats app.js. So we just saved everything. We refresh this page. So we have this COVID stats app and we have very simple UI which have some text, some stats that will be going to be developed, and there is a simple table. So let me brief all of this. Table is nothing, just the table HTML, HTML of the table written here. Let me show you all of it. So we have HTML, we have all the meta tags, we have the title, COVID-19 stats. All these links, the JS, CSS, everything is just provided by this theme. So there's nothing to like think much of it. We have nothing included here. And what we did, we have created our ng app. In the whole div, the main div, we have declared our ng app, my app, our controller, my controller. What are other things here is just the UI thing. You will get this dashboard. And then we have, this is just the top part of the UI. Fine. Here starts the main content. So we have test heading, sample text, all these things. Then we have small div for the COVID-19 stats, this section, and we have our table here. We have sample text. We are going to make everything is dynamic, everything dynamic in real soon. So we have app.js get corrected. In the bottom of this particular file, we have included our app.js and the Angular. I just label it COVID-19 stats using jQuery 3.2.1. Let me see what issues here. Let me see if I'm defining some variables here. Okay. We have declared the app and controller, but we haven't declared any module here. This is why this is creating an issue. So we can bring our code from app.js that we have created earlier. Okay, that's fine now. So we have our app loading. Now let's create a few dynamic things quickly. So let's see how fast the Angular is while creating a stat application for the COVID-19. So first we will change the content, the sample text, and for that I have these contents ready already, so I'm just pasting it there. So there is a sample text, we can simply replace it with our text. Okay, well done. We are showing the first top 10 states from all over the world with most recovered corona cases. The data is coming from the external API. API कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. API is application programming interface. So when you use some third-party APIs, let's say you need, you have seen like login from Google, login for Facebook. So that's a third-party API. You click on that and you simply get access of that particular application. Login through Google, login with Facebook. आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स पे. तो जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी फेसबुक डिटेल लेकर के वहाँ पे आपको लॉगिन दे देता है जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लॉगिन करना चाह रहे हो. वो एक एपीआई है. आपने पेमेंट गेटवेज यूज किए होंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, तो वो जो पेमेंट गेटवे हमारे बैंक से वो प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी एक एपीआई है. हम
अपने एप्लीकेशन में बैंक की सर्विस यूज कर रहे हैं तो हम थ्रू एपीआई करते हैं। तो अभी जो हम स्टैट्स लेने जा रहे हैं वो भी थ्रू एपीआई आएंगी। तो कुछ मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल एपीआई हैं जो कि प्रोवाइड कराती हैं ये स्टैट्स। कुछ टर्म्स मैं पहले बता देता हूं जो कि अभी ड्यूरिंग डेवलपमेंट यूज होंगे, जो आपके लिए जानने जरूरी है। तो दैट इज एपीआई। जावास्क्रिप्ट में हम उसे एजेक्स से कॉल करते हैं, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। हम उससे यूज करके हम किसी थर्ड पार्टी एपीआई, थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को करते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है? जो एपीआई प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमें एक एचटीटीपी यूआरएल देते हैं और हमें वो बताते हैं कि आप इस पे मेथड्स यूज करके आप वहां से डेटा ला सकते हो। मेथड हमारे कई टाइप के होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। सो इफ फ्यू पीपल्स आर नोटिंग डाउन, तो आप नोट कर सकते हो कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या चीज होती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड्स क्या होते हैं। वो एज अ वेब डेवलपर, वेब डेवलपमेंट, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। अब मैं आप इसके बाद आपको ये जानना जरूरी है जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है। जेसन ऑब्जेक्ट एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जेसन ऑब्जेक्ट हमारा, लेट्स से वी हैव वेयर a इज इक्वल टू की वैल्यू के पेयर में होता है। तो लेट्स से वी हैव एफ नेम अमरेंद्र, लास्ट नेम सिंह। So that's a JSON object. When we print A, it says fname, that is key, that is value, that is key, that is value. ये एक JSON ऑब्जेक्ट होता है। तो जो थर्ड पार्टी सर्विसेज, थर्ड पार्टी एपीआईज होती हैं वो हमें JSON ऑब्जेक्ट में डेटा रिटर्न करती हैं। तो लेट्स से मैं जो एपीआई यूज करने जा रहा हूँ वो ये एपीआई है। तो जैसा कि हमने ये देखा कोविड-19 की एपीआई, अगर हम यहाँ पे इंडिया लिखते हैं तो ये हमें रिटर्न कर देता है कि इंडिया के कंफर्म्ड केसेस इतने हैं, रिकवर्ड केसेस इतने हैं, डेथ्स इतनी हुई है और ये जो पर्टिकुलर डेटा अपडेट हुआ है वो लास्ट समय अपडेट हुआ है। अगर यहाँ हम कंट्री चेंज करते हैं, इटली करते हैं, तो ये अब इटली का स्टैट्स आ गया। वहां पे कंफर्म्ड कितने हैं, रिकवर्ड कितने हैं, डेथ कितने हैं। तो हम इन्हीं एपीआईज को यूज करेंगे अपने अभी स्टैट्स को बनाने में। So the data is coming from external API, saved in Angular variable and populated in the chart. एक चार्ट यहाँ पे अभी अपीयर होगा। एंड अगेन हम उसी डेटा को यूज करेंगे हम अपने इन टेबल्स को डायनेमिक करने में। तो हमने ये ओपन कर लिया। हम बाकी कंटेंट अब इस जस्ट ओके। तो एपीआई कवर होगी। हम एपीआई क्या चीज होती है, एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू करते हैं। यहाँ पे एंगुलर की तरफ से जैसे स्कोप एक सर्विस होती है, जैसे ये स्कोप एक सर्विस होती है, यहाँ पे एक सर्विस एचटीएमएल की भी आती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट की भी आती है, जो सिंपल एचटीटीपी डिक्लेयर करके हम यूज कर सकते हैं। अब हम एचटीटीपी के सारे मेथड्स गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे हम अब यहाँ से यूज कर सकते हैं अपने कंट्रोलर में। जैसा हम स्कोप डिक्लेयर किया था, इंजेक्ट किया था, वैसे हमने एचटीटीपी सर्विस इंजेक्ट कर ली। एचटीटीपी सर्विसेज। वन मोर थिंग, जावास्क्रिप्ट एक असिंक्रोनस है, तो जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करता अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की लाइंस को। तो अभी करंट जो सिनेरियोस, करंट जो डेवलपमेंट चलती है, उसमें एक और टर्म है जो आप अपने नोट डाउन कर सकते हो, async await. That is async await. So this is async. We will write some functions with await. So this is the pattern async await. तो अगर हम थर्ड पार्टी एचटीटीपी सर्विस किसी थर्ड पार्टी कोविड स्टैट्स लाने के लिए भी हम कॉल करेंगे तो वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। इस वजह से हम async await यूज करते हैं, सो दैट कि हमारा कोड यहाँ पे रुका रहे, हमारे नीचे की किसी कोड को प्रोसेस ना करे। So these are the terms that will be used in this particular demo application. And one last thing is array map function. There is a nowadays array have a lot of functions with filter, for each, and map. So that will be covered when we will be writing the code. So I have shown the APIs. Let's start with the development. Let's make all these things dynamic. And I hope that will be really fast with the JavaScript. Okay, so this is the title. We changed it, we will keep refreshing it. So this is done. Let's bring the stats. There will be a chart. So we get back to our app.js, and for chart we will be using another API. So this is the API
that we will use for chart, that is a separate API with that. इस पे हमें केवल एक कंट्री की डिटेल मिल रही है। अगर हम एक नई API ओपन करें, यहाँ पे हमें अलग अलग कंट्रीज की डिटेल्स मिल रही, जिसमें जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र में वो बता रहा है कि हमारे लास्ट डेथ्स कितनी हुई, रिकवर्ड कितने हुए, कंफर्म कितने हुए, ये एक स्टैट्स आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल डिटेल्स आ रही है, इसे हम लोग अपने चार्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एपीआई कर लिया। अब जो HTTP हमने इंजेक्ट किया था उसमें एक गेट मेथड होता है। गेट मेथड जो भी ये सर्विस होगी कोविड-19 मैथ DRO, उन्होंने प्रोवाइड कर रखा होगा कि गेट मेथड आप यहाँ अगर कॉल करते हैं तो वो ऐसा डेटा हमें रिटर्न कर देंगे। मैं इसके बाद हम http.get हमने URL डाला, देन हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये सिंपल एंगुलर के प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट है। जो हमारा रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा जो बैकएंड से आ रहा है। एक और फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे जो एरर ट्रिगर करेगा, जो एरर टेक केयर करेगा अगर हमें कॉल करने में कोई एरर आती है तो। तो ये हमारा सक्सेस ब्लॉक होगा, ये हमारा एरर ब्लॉक होगा। हम यहाँ रिस्पॉन्स प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। और अगर कोई एरर आती है तो हम वहां पे एरर लॉक करा लेंगे। ओके, अब ब्लॉक कंप्लीट है। हमने यहाँ रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए मैंने कहा था कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो वहां पे एपीआई कॉल करके हमने कंसोल कराया वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है रिस्पॉन्स। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं डेटा में, एरे में ये वही डेटा है जो हमने अभी वहां महाराष्ट्र के लिए देखा था। ये सेम ये डेटा हमें अपने यूआई में मिलने लगा, अपने कोड में मिलने लगा। अब इसकी कुछ वैल्यूज हम यूज करके यहाँ पे हम चार्ट एज अ चार्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पे main.ts होगा, यहाँ पे ये चार्ट का कोड है, ऑलरेडी हमें थीम की तरफ से प्रोवाइडेड है, तो हम उसे लिखने में एफर्ट नहीं मारते। हमें ये प्रोवाइडेड है थीम की तरफ से, जो कि डमी डेटा के साथ प्रोवाइडेड है। हमने बस एक ब्लॉक ऑफ कोड को पेस्ट किया है। हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो हम देख सकते हैं ये एक डमी चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है। हमारे अभी कोविड स्टैट से नहीं प्रिपेयर हुआ है, ये एक थीम की तरफ से प्रोवाइडेड चार्ट है जो कि यहाँ पे जनवरी फरवरी दिखा रहा है। माई फर्स्ट डेटा सेट, माई सेकंड डेटा सेट। हम इसे अब थोड़ा सा डायनेमिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च। अगर हम यहाँ पे अपनी डायनेमिक वैल्यूज ले आए तो ये नीचे के ब्लॉक चेंज हो जाएंगे। इसके बाद डेटा सेट यहाँ पे दो प्रोवाइडेड है, जेसन ऑब्जेक्ट, माई फर्स्ट डेटा सेट, माई सेकंड डेटा सेट, जो कि यहाँ पे रिटर्न है। एंड द लास्ट थिंग, जब हम इस पे हॉवर करते हैं तो ये दिखा रहा है माई फर्स्ट डेटा सेट 65, माई सेकंड डेटा सेट 28। तो ये इन डेटा से आ रहा है। माई फर्स्ट डेटा सेट का 0th एलिमेंट 65 है, माई सेकंड डेटा सेट का 0th एलिमेंट 28 है, और वही डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है, माई फर्स्ट डेटा सेट एंड माई सेकंड डेटा सेट। तो हम अगर इस पोर्शन को डायनेमिक कर दें, इस डेटा को डायनेमिक कर दें, तो ये चार्ट हमारे कोविड स्टैट्स के अकॉर्डिंग डायनेमिक हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हम ये देखना चाहते हैं कि कितने पेशेंट रिकवर्ड हुए हैं और एक डेथ रेशियो क्या है। इसको रिफ्रेश करेंगे हम तो यहाँ पे रिकवर्ड एंड डेथ रेशियो आ गए। डेटा बट हमारा अभी नहीं आ रहा, हम डेटा को भी मैनिपुलेट करते हैं। तो हमारा डेटा आ रहा है यहाँ रिस्पॉन्स में। हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्कोप का, जो कि हमारे व्यू में रिफ्लेक्ट होगा। चार्ट डेटा ब्लैंक एरे हमने डिफाइन किया। जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है हमने चार्ट डेटा में उस रिस्पॉन्स को कैप्चर कर लिया, और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स के अंदर डेटा की के अंदर आ रहा है।
तो इट्स बेटर कि हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा कैप्चर कर लें। हमारा चार्ट डेटा रेडी है। एंड नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो आई थिंक 614 आ रहे हैं, 600 रिकॉर्ड हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, तो हम अपनी इस एरे को ट्रिम कर देते हैं 10 या 8 लेंथ पे। तो ये जो टाइप है हमारा, ये एरे टाइप का है। एरे को अगर हम लेट्स से ये 614 इसकी लेंथ है, तो हम सिंपल इसकी लेंथ को अगर 10 डिक्लेयर कर दें तो ये एरे पूरा ट्रिम हो जाएगा। हम इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। हमारा रिस्पॉन्स ये आ रहा था और हमने इसे ट्रिम कर दिया है। रिफ्रेश करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा था वो 615 एरे एलिमेंट थे और अब ट्रिम होकर के वो 10 एलिमेंट पे आ गया है। अब इस चार्ट डेटा को, जो कि हमारा डायनेमिक है, स्कोप में डिक्लेयर्ड है, हम इसे अब ले जाकर के अपने HTML में यूज करते हैं। तो ओके फाइन। अब एक वेरिएबल अगर हम एक किसी को देखते हैं, एक जेसन को, तो हमारे पास कंबाइन की है जो ये बता रही है कि ये पेशेंट, ये कंट्री कौन सी थी, और ये जो रिकवर्ड की है जो ये रिकवर्ड पेशेंट एंड डेड पेशेंट बता रही है। तो आइए हम अब यहाँ पे बहुत जल्दी से डायनेमिक करते हैं इसे। हमने चार्ट डेटा लिया जो कि एक एरे है। चार्ट डेटा डॉट मैप फंक्शन, जो भी मैंने कहा था एरे का मैप फंक्शन है, इसमें हम एक एक एलिमेंट पे ट्रावर्स करेंगे और हम रिटर्न करा देंगे कंबाइंड की को, जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि किस कंट्री के किस स्टेट की बात हो रही है। एलिमेंट डॉट कंबाइंड की। अब हम सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अनएक्सपेक्टेड आईडी, ओके, यहाँ कॉमा मिस हो गया। फाइन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवर्ड यूएस, अर्जेंटीना एंड बाकी डिटेल यहाँ पे आ गई, कर्नाटका, इंडिया। कुछ डिटेल्स अभी भी मिसिंग है। कंबाइंड की, ओके। अब हमने जो यहाँ पे लिख रखा है, हम रिकवर्ड और डेथ केसेस कवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ से रिकवर्ड को भी उठाएंगे और ये जो डेटा है उसको डायनेमिक कर देंगे। तो हमारा जो की हमने उठाया वो रिकवर्ड है, इसको हम रिमूव करते हैं, और जैसे हमने इसको मैप किया है, हम यहाँ पे डायनेमिक डेटा सेट क्रिएट कर देते हैं रिकवर्ड के साथ। तो एलिमेंट के सारे रिकवर्ड केसेस को उठा लेगा, और हमारे जो डेटा सेट है वो 10 की है, तो जो इनिशियल 10 रिकवर्ड केसेस होंगे, डेटा होंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब हम देख सकते हैं ये जो डेटा था हमारा डायनेमिक हो गया। अभी जो वहां पे चार्ट डेटा आ रहा था वो 65 आ रहा था, अब हमारा ये डायनेमिक हो गया। एंड जस्ट बिकॉज ये डेटा इतना बड़ा है, वो सेकंड चार्ट वहां से लॉस हो गया। यहाँ पे पहली वैल्यू 28 थी, इसको अगर हम बहुत इंक्रीमेंट कर दें तो ये चार्ट के कंपेयर में दिख पाएगा। तो अब हम इसको भी डायनेमिक करते हैं। दूसरा डेटा जो हम उठाने वाले थे वो डेथ रेशियोज उठाने वाले थे, और जो वो डेटा आ रहा है वो हमारे, उसकी की जो है वो डेथ्स है। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये डेटा पूरी तरह से डायनेमिक हो गया। ये हाइट बहुत छोटी आ रही है जस्ट बिकॉज कि ये पैरेलल इसके जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से ये पर्टिकुलर एरिया छोटा आ रहा है। बट हाँ, अब हम देख सकते हैं कि ये जो महाराष्ट्र के रिकवर्ड केसेस हैं एंड जो डेथ केसेस है वो यहाँ पे डायनेमिक आ गए। अभी हमने लेंथ 10 किया है, हम इसे डायनेमिकली कितना भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 614 डिटेल्स आ रही हैं, हम इसे 20 कर सकते हैं। ये इनिशियल 20 उठा लाएगा। और अगर हम देखना चाहें जैसे महाराष्ट्र, अगर हम इसे थोड़ा सा कंपेयर भी करना चाहें, तो हमारे पास महाराष्ट्र की डिटेल हम रियल टाइम भी चेक कर सकते हैं कि ये नियर अबाउट सिमिलर है। 70 लाख के अराउंड है, ये ज्यादा पहले अपडेट हुआ होगा। हमारे पास 15.62 है, तो जब भी ये एपीआई अपडेट होगी ये डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब हम नीचे अपने टेबल की डिटेल को एडिट करते हैं। ये चार्ट हमारा डायनेमिक हो गया बहुत ही इजी वे में। अब हम सेकंड चीज अपने टेबल को अपडेट करते हैं।
टेबल के लिए जो हमें एपीआई यूज करनी थी वो हमने ये कहा था कि हम कंट्री वाइज डेटा यहाँ टेबल में लाएंगे। तो सबसे पहले हम एक कंट्री डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि लोकल वेरिएबल हो सकता है क्योंकि कंट्रीज हमें वहां नहीं भेजनी अभी। कंट्रीज हमने डाल दिया इंडिया। हम एक और एपीआई कॉल करेंगे टू गेट डेटा इनटू टेबल्स। हमने ऊपर की एपीआई पेस्ट कर दी, बाकी सारा कुछ हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हमें इनकी यूज नहीं है। एंड कंट्रीज हमने एरे में डिफाइन किया क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज हम एक साथ टेबल में दिखा सकते हैं, तो हम एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे जो कि कंट्रीज को ट्रावर्स करेगा और हर कंट्री के लिए ये स्टैट्स को लाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट थिंग हमें चेंज करना होगा ये एपीआई, क्योंकि एपीआई इस बार दूसरी है। हमने एपीआई कॉपी की, हमने एपीआई पेस्ट किया। ये कंट्री यहाँ पे स्टैटिक है, हमने ऑलरेडी कंट्रीज डिफाइन कर रखा है, तो हम इसे स्टैटिक ना यूज करके हम इसे डायनेमिक यूज करेंगे। लेंथ ऑफ आई, तो 0th पोजीशन से ये स्टार्ट होगा। अभी हमारे पास केवल एक कंट्री है, पहले हम एक कंट्री पे ट्राई कर लेते हैं। हमने एपीआई कॉल कर ली, रिस्पॉन्स एक जनरेट होना चाहिए। मैं पुराने लॉग क्लियर कर देता हूँ सो दैट वो मिसमैच ना हो। रिस्पॉन्स फॉर ईच कंट्री। अब हम अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश करके देखते हैं रिस्पॉन्स ऑफ ईच कंट्री। तो अगर यहाँ पे हमने इंडिया के लिए हिट किया था, और बड़ा कर देता हूँ, हमने यहाँ पे इंडिया के लिए हिट किया था, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिया की डिटेल आ गई है जहाँ पे हमें कंफर्म डेथ रिकवर्ड केसेस मिल रहे हैं। अब इस डेटा को हम लोग यूज करेंगे अपने नीचे टेबल को डायनेमिक करने में। मैं थोड़ी देर के लिए उस चार्ट को हाइड करता हूँ सो दैट कि हम टेबल पे कंसंट्रेट कर सकें। फाइन, तो हमारे पास एक कंट्री की डिटेल आ रही है, पहले हम उसे डायनेमिक करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो डिटेल आ रही है वो आ रही है कंफर्म डेथ रिकवर्ड। हम अपनी हेडिंग उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। ये हमारी हेडिंग है, यहाँ हम पहले कंट्री नेम दे देते हैं, कंट्री नेम, देन वी हैव confirmed, recovered deaths and last updated on। हम अपने टेबल को रिफ्रेश करते हैं तो ये टेबल रिफ्रेश हो गई है। अब जो हमारा वैल्यू है वो हमने सेव नहीं कराया, तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमारा चार्ट डेटा था वैसे हम एक टेबल डेटा स्टोर करते हैं। टेबल डेटा हमने लिया, हमने रिस्पॉन्स पुश करा दिया इसमें, सॉरी हम इसमें ऐसे पुश कराते हैं। तो हमें कंट्री का नेम चाहिए जो कि कंट्रीज में ऑलरेडी आ रहा है। हम कंट्री का नेम उठा सकते हैं, उसके बाद हमें कंफर्म्ड केसेस हैं एंड हमारे पास रिकवर्ड हैं एंड डेथ्स हैं। सो अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्स के किस की में आ रहा है। रिस्पॉन्स के डेटा के कंफर्म्ड के अंदर ये वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट हम ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो हमने ये कर दिया, हमने एक अपना जेसन बना लिया जिसमें नेम आ रहा है, कंफर्म्ड केसेस आ रहे हैं जो कि एपीआई से आ रहे हैं, रिकवर्ड एंड डेथ केसेस आ रहे हैं। इसके साथ ही हम लास्ट अपडेटेड डिटेल भी ले लेते हैं जो कि लास्ट अपडेटेड में आ रहा है। फाइन, अब हमारे पास टेबल डेटा में सारा डिटेल है जो कि स्कोप के अंदर है। इसको अब हम यूज करेंगे अपने टेबल को डायनेमिक करने में। तो और एक चीज और हम कर लेते हैं, इंडिया के साथ साथ अब हम इटली का भी डेटा ले आते हैं सो दैट कि हमें दो डेटा एक साथ देखने को मिल जाए। हमने रिफ्रेश किया, अब हमें यहाँ दो डेटा मिल रहे हैं, वन फॉर इंडिया वन फॉर इटली। अब हम इसे यहाँ पे दोनों को डायनेमिक करते हैं। अब
अगर हम नॉर्मल HTML में कर रहे होते तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, क्योंकि HTML में हमें एक एक रो एक एक कॉलम को बनाना पड़ता। लेट्स से अगर हमें नॉर्मल HTML बनाना होता तो हमें ये डिलीट कर दिए। अब हम रोज पे ng रिपीट एक डायरेक्टिव यूज करेंगे। ये एक लूप की तरह होता है जिसमें हम डिफाइन करेंगे अपना जो हमने वेरिएबल लिया था टेबल डेटा। So we will use it like country data, country stats from table data, और इसे हम अपने एंगुलर एक्सप्रेशन से इसको डायनेमिक करेंगे। तो एंगुलर एक्सप्रेशन हमारे कंट्री डेटा में जो हमारे वैल्यूज थे, पहले हमें चाहिए कंट्री नेम, वो हमें एज ए नेम मिला। ये मैं रिलेट कर देता हूँ, हमने ये जो डिक्लेयर किया है मैं इसी को पिक करूंगा क्योंकि टेबल डेटा में ये बार बार अलग अलग कंट्रीज के लिए डेटा पुश हुए हैं। तो ये जो कीज है हमारी, ये कीज ही वहां पे यूज होंगी यूआई में। मैं उन्हीं को एक्सेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सो वी हैव कंट्री स्टेट्स नेम। ये कंट्री टेबल डेटा हमारा एक एरे है। कंट्री स्टेट्स उसके एरे के एक एक जेसन को पार्स कर रहा है। तो जितनी बार ये जेसन, जितना भी उसमें ऑब्जेक्ट होगा उतनी बार ये रो अपने आप बनती चली जाएंगी। तो हमने वहां पे नेम सेव करा रखा है, हमने कंफर्म्ड, सेकंड हमारा कंफर्म्ड है, थर्ड हम रिकवर्ड यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा डेप्थ है, एंड लास्ट हमारा लास्ट अपडेटेड एट। इसको हमने यूज कर लिया। एंड अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, ओके, सो हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं वो कंफर्म के अंदर वैल्यू के अंदर मिल रही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम यहाँ पे कंफर्म डॉट वैल्यू फेच कर ले, या फिर अगेन एंगुलर का पावर कि हम यहाँ पे भी डायनेमिकली चीजें कर सकते हैं। तो हमें अगर कंफर्म रिकवर्ड डेप्थ इनकी डॉट वैल्यूज मिल रही हैं तो हम यहाँ पे डॉट वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, और हमें रिफ्रेश करने पे सेकंड वैल्यू है और वैल्यूज, दैट्स अ वैल्यू, so we just delete it. So here it is. So अब हमें दो कंट्री के स्टैट्स मिलने लग गए, हमारे कंफर्म रिकवर्ड डेट। अब हम इसको अपनी एपीआई से भी अगर मैच कराएं, इटली के लिए 862681, so for Italy it's 862681। एंड अब अगर हम यहाँ पे जैसे दो कंट्रीज के लिए लेकर के आ रहे हैं डेटा, अगर हम यहाँ बहुत सारी कंट्रीज लेकर के ले आए, मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे। सो लेट्स से वी हैव दीज मैनी कंट्रीज, और हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे एपीआई से डेटा आता जा रहा है वैसे वैसे ये चीज अपने आप डायनेमिक होती जा रही है, राइट। दैट्स द पावर ऑफ AngularJS. In just half an hour or in an hour we have created a totally stats application, so we can simply deploy it and we can like use it. That's the power of AngularJS. One more thing I want to show, एक छोटी सी चीज। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये डेट लास्ट अपडेटेड ऑन, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, हम इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम एंगुलर पाइप्स यूज करेंगे। पाइप्स, मैं एक पाइप्स यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपने देखा हो, हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1556, तो हम लोग इन एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बनाते हैं। जो नंबर्स होते हैं, जब हम करेंसी में डील करते हैं, हम लिखते हैं 10,000, तो 10 के अगेंस्ट हम कॉमा लगा देते हैं। तो अगर हमें ये सारे कॉलम्स में लगाना हो तो वो अगर हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे तो वो बहुत बड़ा हेडेक है, हमें बहुत बड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा केवल उसको कन्वर्ट करने के लिए। बट एंगुलर बहुत सारे पाइप्स वो प्रोवाइड कराता है। तो हम एक नंबर को यूज करके देखते हैं। तो लेट्स से ये वैल्यूज हमारे नंबर्स हैं, हम सिंपल इन्हें अगर ओके, सो मैं ये बता रहा था कि हमने इसको नंबर टाइप केवल कन्वर्ट करने के लिए हमने केवल एक पाइप यूज किया है, दैट इज नंबर। व्हाट इज पाइप? हियर इट इज, दिस इज पाइप, दिस इज बेसिकली पाइप। तो हमने बता दिया कि जो वैल्यू है वो हमारा नंबर टाइप है, कंफर्म रिकवर्ड डेप्थ, और इसे जब हम अपने यूआई में देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड नंबर्स बन गए, ये सारे हमारे कॉलम्स।
अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये सारा कॉमा सेपरेटेड, ये नंबर्स बन गए। सेम हमें जैसे ये डेट रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है तो हम उसे भी रीडेबल फॉर्मेट में बना सकते हैं। उसके लिए भी एक पाइप अवेलेबल है जो मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। So that's the pipe, date, medium. So if we declare like that and we refresh, so we can see now अब जो ये date आ रहा है ये हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है। अब मैं अपने चार्ट को भी, एंड वन लास्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर डेमो डेवलपमेंट, अगर हमें ये सर्च करना हो, लेट्स से हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी है बट हमें सर्च करना है कुछ कंट्रीज, हमें यूजर को ये ऑप्शन देना है कि वो कुछ कंट्रीज फिल्टर कर सके। तो एंगुलर अगर हम जेएस जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे वो फिल्टर, तो वो अगेन बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो और उसे अगर हम एंगुलर के साथ यूज करना चाहें तो हम वो देखते हैं कितना फास्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इनपुट टाइप है जो सर्च करने के काम आएगा। ये इनपुट एक इनेबल हो गया, एंटर योर सर्च। और हमें बस दो चीजें डिक्लेयर करनी होंगी, एक मॉडल सर्च टेक्स्ट, ये हमने एक वेरिएबल डाला सर्च टेक्स्ट, और इस सर्च टेक्स्ट को हमें केवल बता देना होगा कि किस टेबल से ये सर्च करना है। तो हमने यहाँ इनपुट बॉक्स में बताया कि तुम सर्च टेक्स्ट को ढूंढना, और सर्च टेक्स्ट हम यहाँ बता देंगे टेबल में। ये जो टेबल रेंडर हो रहा है इस पे एक फिल्टर लगा है जो कि सर्च टेक्स्ट वैल्यूज के अगेंस्ट ये फिल्टर होता चला जाएगा। हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब हम यहाँ टाइप करते हैं IN, तो देखिए कितना फास्ट है। हमने केवल एक इनपुट बॉक्स इनेबल किया और हमने केवल इन दोनों वेरिएबल्स को मैच करा दिए कि यहाँ का जो सर्च टेक्स्ट आएगा ये टेबल उसके अकॉर्डिंग फिल्टर होना चाहिए। जस्ट बाय डिक्लेयरिंग दीज टू थिंग्स, हमने सर्च टेक्स्ट यहाँ बता दिया और हमने सर्च टेक्स्ट इनपुट बॉक्स को बता दिया कि तुम्हारा जो वेरिएबल है वो सर्च टेक्स्ट है और तुम्हें जो वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी वो इस टेबल के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो हमने केवल IND टाइप किया, ये फिल्टर कर दिया। हम कुछ भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम लेट्स से 144 टाइप करते हैं तो जहां जहां 144 चीजें मिल रही होंगी वही सारे कॉलम को फिल्टर करके ले आया। इसे अगर हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना होता तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती, ये सारे टेबल के एक एक वैल्यूज को ढूंढ करके लाना। अब हम अपने चार्ट को भी इनेबल कर देते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हम देख सकते हैं कितने छोटे टाइम में एक बड़ा सा एप्लीकेशन रेडी हो गया जो कि कोविड-19 स्टैट्स के चार्ट भी बता रहा है, हमें एक कंट्री वाइज लिस्ट भी दे रहा है और यूजर उससे अपनी कंट्रीज को फिल्टर भी कर सकते हैं। इसे हम स्टेट वाइज लगा सकते हैं जो कि अपने स्टेट्स को फिल्टर कर ले। तो विद इन एन आवर हम कितने बड़े एप्लीकेशन को अचीव कर सकते हैं, दैट्स द पावर ऑफ एंगुलर। अगेन ये कोड अभी मैं इस चैट सेक्शन में लिंक इसका पेस्ट कर दूंगा सो दैट कि आप इस कोड को आराम से देख सको। हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे, कुछ एंड्स की स्लाइड्स हैं, हम उसे डिस्कशन कर लेते हैं। सो आई होप ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि एंगुलर कितना फास्ट है और कितनी तेजी से इन सब चीजों को ग्रैब कर लेता है। तो लास्ट के स्लाइड हम देख लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंगुलर जेएस। व्हाट इट इज, एडवांटेजेस आपने देख ही लिए। इट प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन इन अ वेरी क्लीन एंड मेंटेनेबल वे। सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का मौका देता है और बहुत इजीली कोड मेंटेन करने का मौका देता है। इट प्रोवाइड्स डेटा बाइंडिंग कंपैटिबिलिटी टू HTML, thus it gives user a rich and responsive experience। डेटा बाइंडिंग हमने कितनी पावरफुल तरीके से किया, इस वजह से यूजर का एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो गया। जो हमने अभी फिल्टर अटैच किया, जो हमने टेबल अटैच किए, डेटा लाना, तो यूजर का एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा पावरफुल बना देता है। एंगुलर जेएस कोड इज यूनिट टेस्टेबल, दैट इज थ्रू कर्मा लाइब्रेरी। कर्मा लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग एंगुलर जेएस को यूनिट टेस्टिंग के अगेंस्ट भी बना सकते हैं। एंगुलर जेएस यूजेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड मेक यूज ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। हमने एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट किया था, दैट इज HTTP। हमने केवल एक HTTP वेरिएबल की तरह डिफाइन करके हमने कितना बड़ा पावरफुल कैपेबिलिटीज हासिल कर ली। that is getting API data from the for the COVID stats. What are the other advantages? AngularJS provide reusable components. तो लेट्स से अगर हमें ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये पर्टिकुलर कंट्रोलर हमें कहीं और भी यूज करना होता, हमें कोई ऐसा कॉमन फंक्शन है जो हमारे एप्लीकेशन बहुत जगह यूज हो रहा है, तो हम उसे केवल एक जगह डिक्लेयर करके हम यूज कर सकते हैं। हमारा अगर ये पर्टिकुलर चार्ट वाला कंट्रोलर है वो हम कई जगह यूज करना है तो हम उसको एक अलग डायरेक्टिव बना करके हमें जहां पे भी हो केवल वन लाइनर यूज करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। With AngularJS, the developer can achieve more functionality with short code that we already see. हमने छोटे छोटे कोड लिख करके बहुत बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटीज अचीव कर ली। In AngularJS, views
Views are pure HTML pages and controllers written in JavaScript do business processing. व्यू हमारे HTML पेजेस थे, जो इतने हमने HTML लिखे वो HTML पेजेस थे, जो हमारा कंट्रोलर था वो मेन बिजनेस लॉजिक था, जो हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर थे, जो वेरिएबल्स ट्रांसफर हो रहे थे डेटा इधर से उधर, वो मॉडलिंग हो गई। AngularJS can run on all major browsers and smartphone including Android, iOS based phone and tablet. जो मैंने एप्लीकेशन अभी बनाया उसे हम मोबाइल में भी आराम से देख सकते हैं विदाउट एनी इश्यू, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हर जगह सपोर्टेड है। जो डिसएडवांटेजेस है, being JavaScript only framework, application written in AngularJS are not safe. Server side authentication and authorization is must. तो बेसिकली यहाँ पे सेफ्टी की जो बात है, जैसा हमने यहाँ पे किया अभी, हमारा ये कंसोल ओपन करके हम बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर वेबसाइट की मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये सिक्योर नहीं है। उसके सिक्योरिटी के लिए हमें एक ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ता है कि जो लॉग्ड इन यूजर हो वही ये सब डिटेल देख सकें। एंड अनदर थिंग अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो एक टर्म होता है कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिस्पॉन्स एंड थिंग, तो CORS ये टर्म है, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो पढ़ने के लिए कि आखिर जावास्क्रिप्ट में और लूपहोल कैसे हैं जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोर्स भी एक है जो कि सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है। कोर्स को अगर इनेबल करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी वेबसाइट की बढ़ जाती है। Not degradable, if the user of your application disable JavaScript then nothing would be visible except the basic page. So अगर हम इस पेज के जावास्क्रिप्ट को ही डिसेबल कर दें तो ये हमें कुछ भी ये पावर नहीं दिखेगा, हमें केवल और केवल एक वेब पेज दिखेगा जितनी HTML हमने लिखी है, कोई भी चीज इसमें से डायनेमिक नहीं होगी। So that's one disadvantage. Okay, that's all about the AngularJS. This is the previous version of AngularJS. So what now? Currently we have Angular that is separate from AngularJS. That's quite confusing. But AngularJS एक previous version था, Angular एक नया version है. So just for a history, AngularJS initial version था the first version of provided by the Google on Angular. Angular जो है वो version 2 से start हुआ, इसके version 2 आए, 3 नहीं आया, 4 आया, 5, 6, 7, 8 and currently 9 active है। तो एप्लीकेशन मार्केट में दोनों पे अवेलेबल है, बट जो हमारा एंगुलर और एंगुलर में मेजर डिफरेंसेस है वो है जो चीजें हमने अभी मैनुअली की, बहुत सारी चीजें हमारा लेटेस्ट एंगुलर थ्रू कमांड लाइन, हम केवल एक कमांड भेज करके हम ये सारे कंट्रोलर कंपोनेंट्स और ये सब चीजें बना सकते हैं। सो वो थोड़ा सा और फास्ट है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से एंड इम्प्रूव्ड है, रेंडरिंग फास्ट है, और उस एंगुलर के पर्टिकुलर जो हमारा लेटेस्ट एंगुलर है उसके कोड को यूज करके हम अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी, अभी जैसे हमने केवल वेब एप्लीकेशन बनाया, एंगुलर को यूज करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि अब जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है। यूजिंग दैट वी कैन क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस and many other things, web application obviously. So what it is, the Angular, the upgraded AngularJS, Angular is a complete rewrite of AngularJS framework. That is totally different. AngularJS के syntax और Angular के syntax में बहुत difference है. It has a different approach from its predecessor. Angular allows you to build application across all platforms that I already said. It is an open platform that uses TypeScript, so if you are writing you can see what is TypeScript exactly. It is a superset of JavaScript, but how we write in TypeScript you can have a look on it. So you can note down what is TypeScript. And TypeScript is a syntactic superset of JavaScript and adds optional static typing to the language. Feature of Angular, that is the latest Angular. Angular is a cross-platform language and it supports multiple platforms that I already explained. It is used to build types of apps, desktop, native, progressive web apps. Angular is amazingly fast and provides a great performance due to following reasons. Universal support, code splitting, code generation. So code splitting is same जैसा हम अभी कंट्रोलर बना रहे थे, हम कई सारे उसपे कंपोनेंट वर्ड होता है जो कि हम कई सारे कंपोनेंट बना सकते हैं। थर्ड थिंग इज कोड जनरेशन। जो कोड जनरेशन हमने अभी एंगुलर में मैनुअली किया, एंगुलर में हमें वो सब चीजें थ्रू कमांड लाइन, एक कमांड हम ऑपरेट करके बहुत सारे प्री डिफाइंड कोड हम लिखाया ले सकते हैं, एंड दैट इज वेरी गुड। Angular provides a better productive due to its simple and powerful template syntax, command line tool, powerful editors and IDE.
So that's again development in latest Angular is more faster than the AngularJS that we just saw. So आप imagine कर सकते हो कि Angular का पावर कितना बड़ा है. अगर हम अपने छोटे से टाइम में AngularJS से हमने कितनी बड़ी चीज बनाई, तो Angular as जैसा कि बता रहा है कि Angular फास्ट है, तो वो AngularJS से भी फास्ट है. उससे हम और भी बड़ा एप्लीकेशन इतने ही छोटे टाइम में बना सकते हैं. That we will not covering in this particular webinar. Feature of Angular: Angular is a complete framework of JavaScript for testing. Just a second. JavaScript which provide testing, animation and accessibility. It provides full stack development along with Node.js, Express.js, MongoDB. तो JavaScript अगर आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप Angular को यूज करके आप using Node, Express and Mongo. You might have heard of mean stack developer. That is Mongo, Express, Angular and Node.js. So that's the thing. आप इस Angular को यूज करके using Node.js, Express and Mongo बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन बना सकते हो. एक छोटा डेमो, बस मैं एक Angular लेटेस्ट Angular ऐप क्रिएट करने का बता रहा हूँ, जो मेहनत हमने इतनी की AngularJS के थ्रू, ये कितना फास्ट है अगर हम उसे Angular से करते हैं. So we have just a small demo pending. So we can see this. This is my terminal, so we can create something like Angular latest. So अभी हम क्या कर रहे थे, हम अपना एडिटर ओपन करते थे, हम उसमें index.html, app.js मैनुअली बनाते थे, हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे, हम अपना कंट्रोलर बनाते थे, मॉड्यूल बनाते थे, देन हमारा एक बेस सेटअप होता था एंगुलर का. यूजिंग एंगुलर 2 what we can do, we simply write ng new and let's say covid stats. ये हमने एक एप्लीकेशन नेम दिया. ओके, and that's the last thing we just show you. So it is creating the CSS we will use, and this is the thing. We just write ng new covid stats, and what it does, it creates a lot of app files that will already have a built-in capabilities of all the Angular routing and everything. The thing we have discussed, module, controllers, all these things are named here as a component. So this is creating app component, app modules, and it will be pre-built. We don't have to write anything to start the development. So the app is ready. A lot of applications there. CD test Angular. And now we will see what is happening here. Something. Okay, the file name is COVID stats. So this is compiling and it will open a page. That's the only thing I need to show in this particular thing. And meanwhile, when it is opening, there are a few things I need to like inform here. I'm going to paste the chat. So this is the page that is created by the Angular, latest Angular. We can create a component. Using these small commands, we can create a lot of application with the Angular. Okay, I'm going to share you the links on over the chat. So this is all about our webinar. You have Marine from W3 Villa, and the webinar has been created by W3 grads. We are going to host another webinar with the digital marketing. And if you have your friends, family members that want to learn something about the digital marketing, you can obviously ask them to join. The links and everything details will be shared through the mail. Ask them to register on the same page that you might have been registered. The details will be shared all over the Facebook channels and these areas. Okay, and if someone wants to join
and then they can go to the W3 Grads website and they can register there for internship in a lot of technologies through the career section. Here it is, a lot of internship sections, and if someone wants to become a college ambassador, then they can come to the W3 and click on this particular link to become an ambassador. So that's all for this particular webinar. I have shared the link of GitHub in the chat section. So let's just join the next seminar, that's next webinar on the digital marketing. Ask your friend, family members to join there. Follow us on Facebook with W3 Grads, like our Facebook pages. So that's all for this particular webinar. Thank you everyone. Thank you for joining. Thank you. Bye-bye.